Hi everyone, you cannot afford to miss this video because this video is very important for each one of you watching this, especially those जो stock markets और cryptocurrencies में already invest कर चुके हैं या invest करने का सोच रहे हैं. So in this video we will talk about the FOMC meetings, we'll talk about the interest rate hikes. सबको पता है कि 75 basis points से interest rate hike हुआ है, but interest rates है क्या hike हो रहा है, उसका significance क्या है? You do not have an idea. And on the top of it, how dollar is strengthening over other currencies and how the Nifty and the Bitcoin is gonna move in the coming time. So ये बहुत ही important topic होने वाला है. So just make sure that you watch this video till the very end and let's get started. So this discussion needs to start from Fed, which is the Central Bank of United States, and it determines all the monetary policies in the country. So it doesn't matter what's happening on a global scale या country level पे क्या हो रहा है, they need to make sure that the country is growing economically and at the same time they need to take care of the public interest. तो मतलब country को economically grow करना है and at the same time make sure करना है कि public को किसी भी तरह का नुकसान ना हो. Now Fed has a lot of things to do, but it has one of the chief bodies known as FOMC, which is Federal Open Market Committee, and it needs to take care of all the monetary and the financial decisions that are need to be taken in a country. So जितने भी interest rate hikes हो रहे हैं, जो भी आप news सुन रहे हो, that is taken care of by FOMC, and उसके लिए एक specialized meeting होती है, which is known as FOMC meeting. Now to determine these monetary policies, there are 8 regularly scheduled FOMC meetings in a year. So if you just take an average, एक साल में 52 weeks होते हैं, if you divide it by 8, on an average 6 हफ्ते के बाद एक FOMC meeting होती है. But ये पहले भी schedule हो सकती है time से, depending on the scenario. अगर scenario बहुत ज़्यादा खराब है and if it requires immediate action, तो FOMC meeting थोड़ा पहले हो सकती है. But in this meeting, all the major decisions are taken care of, and वो just make sure करते हैं कि आगे हम कैसे scenario को better कर सकते हैं. Now there are total 12 members who participate in this FOMC meeting. They sit around the table and they make major decisions. तो इसमें कुछ voting members होते हैं, कुछ non voting members होते हैं. जो non voting members हैं, they participate in the discussion. जब final consensus निकलता है, जब final results निकलते हैं, जब उसकी voting होती है, उसमें उनका participation नहीं होता है. So who are these 12 members? I'll just read it out. So 7 members of Board of Governors, President of Federal Reserve Bank of New York, 4 other Reserve Bank presidents who serves on 1-year rolling basis. तो ये 12 members हैं, out of which, and if we see, Jerome Powell is the chair of the Federal Reserve Board. So that is the thing. So these are 12 people who make these major decisions, and जो भी हमारे final verdict होता है या जो भी decisions निकलते हैं, the chairman is the one who is reading it out aloud. So these FOMC meetings are mostly 2 days event. So इस बार 20th and 21st September को ये 2 दिन चला event, जिसका final result हमें 21st को रात को 12 बजे इंडियन टाइम में पता चला. सो मोस्टली जो भी डिसीजंस आते हैं FOMC मीटिंग के, इट्स मोस्टली अनाउंस्ड अराउंड 12 AM IST. बट वेट, व्हाट इज द न्यूज़? So the news is that the federal fund rates or the interest rates are hiked by 75 basis points, which also means that it is a raise of 0.75%. अब ये मैंने कैसे किया? So if you simply divide the basis point by 100, you will get it in percentage. For example, 80 basis points will be equivalent to 0.8%, 100 basis points will be equivalent to 1%. तो जो वैल्यू FOMC की मीटिंग से पहले 2.5% चल रही थी, वो after the FOMC meeting has turned out to be 3.25% after the decision. So it is an increase of 0.75%. और आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ. क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम 3.25% वैल्यू कब थी इंटरेस्ट रेट्स की? इट वॉज बैक इन 2008. और सबको पता है 2008 में क्या चल रहा था, क्या हुआ था? वर्ल्ड रिसेशन 2008. जिसको नहीं पता, गो चेक इट आउट. एंड थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं आफ्टर द मीटिंग इज दैट by year end this interest rate will be 4.4% and next year 2023 में 4.6% तक ये वैल्यू जाने वाला है. So this is scary, but again it's good that we already have an idea. So market में जब भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, अनसर्टिनिटी होती है, दैट इज़ द टाइम जब मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल करती है. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 जब पहला केस आया था, बहुत तेज़ी से मार्केट गिरी, पर उसके बाद जब 4 लाख केस भी आ रहे थे तब भी मार्केट गिर नहीं रही थी, इट वॉज रिकवरिंग. तो जब भी एक्सपेक्टेशन से अलग कोई चीज़ होगी, वी विल सी अ शार्प फॉल. फॉर एग्जांपल ईयर एंड तक अगर 4.4% से कम हमारा इंटरेस्ट रेट रहता है तो मार्केट विल बी बुलिश. लेकिन अगर 4.4% से ऊपर अगर जाता है, इट्स गोना बी बियरिश एंड इट विल बी बैड फॉर द मार्केट. बट इट्स टू सून टू कमेंट ऑन दिस, सो विल कीप अ चेक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब एंड देन विल मेक अ डिसीजन. बट आई होप यू अंडरस्टूड हाउ इट इज बीइंग डन. बट वेट, ईशान सब कुछ समझ आ रहा है, बट एक चीज़ बताओ, जो ये इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है ये किस चीज़ पे हो रहा है? इज इट द रेट एट विच आई विल हैव टू पे माई लोन्स?
और इज इट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन, या फिर ये कौन सा रेट है? सो इफ यू डू नॉट हैव एन आंसर, जस्ट हियर इट आउट. It is the rate at which the commercial banks they do the borrowing and lending of the extra reserves that they have overnight. Commercial banks माने क्या? In India, HDFC, PNB, SBI, ये सारे commercial banks हैं. अब एक example लेते हैं global level पे. So it's a very layman example, but still. Suppose there are two banks, Bank A and Bank B. Bank A के पास कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा है जिसका उसको भी ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कैश है. बैंक B को इमीडिएटली अभी एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत है. सो बैंक B कैन इवेंचुअली आस्क द मनी फ्रॉम बैंक A एंड बैंक A विल बी विलिंग टू हेल्प बिकॉज सब कुछ भाईचारे में चल रहा है. दे विल हेल्प. बट क्या ये भाईचारा फ्री में होगा? द आंसर इज नो. सो द बैंक A इज गोइंग टू चार्ज सम इंटरेस्ट टू बैंक B. अब जो ये इंटरेस्ट बैंक A चार्ज करने वाला है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. माइंड ब्लोन, राइट? सो जस्ट हियर इट आउट. अगर बैंक बी को पहले 2.5% देना था आफ्टर द एफओएमसी मीटिंग, अब उनको 3.25% देना है. सो बैंक बी को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? ऑब्वियसली नुकसान हुआ, बिकॉज दे आर पेइंग हायर इंटरेस्ट रेट्स टू बैंक ए ऑन द बोरोड कैपिटल. सो अब आप एक चीज सोचोगे कि यार बैंक बी को जो नुकसान हो रहा है, मेरा इसमें क्या? मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, बिकॉज बैंक बी इज द वन हु इज टेकिंग ऑल द पेन. बट यू आर रॉन्ग. अगर बैंक बी को नुकसान होगा तो बैंक बी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा वाइल यू आर टेकिंग द लोन्स. तो अगर आपको अभी लोन मान लो 10% पे मिल रहा है, तो अब वो 11% पे मिलने लगेगा, बिकॉज बैंक बी भी अपना कंपनसेशन करेगा कहीं पे जो उसको नुकसान हो रहा है. एट द सेम टाइम जो भी आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है, जो आप लेट पेमेंट्स कर सकते हो, वो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, तो उस पर भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. सो दैट इज द थिंग. दिस इज वेयर द रिटेलर्स आर लूजिंग एंड दिस इज द स्टेप टेकन केयर ऑफ बाय फेड, जिससे वो चाहते हैं कि हम इन्फ्लेशन पे चेक रखें. बिकॉज अगर लोन्स महंगे हो जाएंगे तो लोग पैसा नहीं उठाएंगे बैंक से. इफ दे डू नॉट हैव द मनी तो वो ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएंगे. सो द मनी परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल गो लो. और अगर पैसे खर्च ही नहीं कर पा रहे, अगर सामान खरीद ही नहीं पा रहे हैं, सो द डिमांड विल गो डाउन. और अगर डिमांड नीचे जा रही है, सो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली? अगर डिमांड कम है तो सभी चीज़ों का प्राइस नीचे आने लगेगा. अगर प्राइस नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा. सो दैट इज द आइडियल सिनेरियो एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली नाउ. अब जो भी एफओएमसी मीटिंग से रिजल्ट निकलते हैं, इस पर बहुत ही मेजर इंपैक्ट होता है हमारे स्टॉक मार्केट्स पे. चाहे आप निफ्टी 50 पकड़ लो, चाहे आप S&P 500 पकड़ लो, या फिर आप क्रिप्टो करेंसीज की बात करो तो आप बिटकॉइन पकड़ लो, सब पे एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है. एंड आई शो यू वन ऑफ द ग्राफ्स विच वी शेयर्ड ऑन ट्विटर, जिसमें आप देखोगे कि कैसे एफओएमसी मीटिंग्स के रिजल्ट के बाद बिटकॉइन ने मूवमेंट की है. सो ऑन द ग्राफ यू कैन सी, चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, और अब चाहे सितंबर हो. सितंबर में इट वाज फेयरली साइडवेज, बट आप देखोगे कि हर एक के बाद देयर वाज सम वॉलिटिलिटी इन द मार्केट, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई एफओएमसी मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ कि क्या हो रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, इज इट बिलो एक्सपेक्टेशन, इज इट अबव द एक्सपेक्टेशंस, इज इट गुड, इज इट बैड. नाउ आई वुड वांट टू टॉक अबाउट द यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स व्हिच इज DXY on TradingView, and you will be shocked to see what's happening. So you can see this index DXY, it's range bound from 2015 to mid 2022. सो आफ्टर द ब्रेकआउट अब ये एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे इसकी वैल्यू हो चुकी है 111 एंड इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू कि लास्ट टाइम ये वैल्यू 111 थी 2002 के अंदर, आज से 19 साल पहले, 20 साल पहले, तब थी ये वैल्यू 111. सो यू कैन सी हाउ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर इज बीइंग राइट नाउ. अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा इसी रेट पे, सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जो FIIs हैं वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स. उसका सिंपल रीज़न क्या है कि वहाँ पे उनको स्टॉक्स के कैपिटल गेन्स तो मिलेंगे ही, बट एट द सेम टाइम क्योंकि उनका पैसा अब डॉलर्स के अंदर है, डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, तो वहाँ पे भी एक गेन मिलने का फ़ायदा रहेगा. एंड दैट्स वाई आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कीप सम पार्ट ऑफ माई कैपिटल, माई पोर्टफोलियो इन टू द यूएस स्टॉक्स, बिकॉज इंडियन रुपी की वैल्यू नीचे जा रही है एंड एट द सेम टाइम डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है. तो अगर आपने $1000 लिए हैं, उसकी वैल्यू थोड़े दिनों में इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू INR वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज पहले अगर $1 ₹75 के बराबर था तो आज वो $80 के बराबर है. सो दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो यूएस डॉलर या DXY का ऊपर जाना इज़ नेवर बुलिश फॉर द मार्केट, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दिस थिंग. अगर DXY ऊपर जा रहा है, इफ़ इट इज़ मेकिंग अ ब्रेकआउट, अगर ये नए लेवल्स, नए हाइज बनाते रहेगा, सो इट्स नॉट एट ऑल बुलिश, इट्स बेयरिश. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर गेम प्लान कि हमें आइडियली करना क्या चाहिए इस मार्केट में. व्हाट शुड वी डू फॉर द शॉर्ट टर्म, व्हाट शुड वी डू फॉर द लॉन्ग टर्म. तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करेंगे कि सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अक्टूबर कैसा रहेगा फॉर क्रिप्टो करेंसीज, फॉर स्टॉक मार्केट. तो सबसे पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज़ there is no FOMC meeting in October, which is next month. So if you look at the dates, it started from say July 2021, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट था 0.25% और हमारा
जनवरी 2022 तक 0.25% ही रहा, बट यहाँ पे एक मेजर अनाउंसमेंट आई फेड की तरफ से कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक करने लगेंगे, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली यू सी दैट फ्रॉम 0.25 इट वेंट टू 0.5, देन 1, देन 1.75, देन 2.5 एंड देन फाइनली इट इज एट 3.25। अब अगला जो एफओएमसी मीटिंग है दैट इज ऑन 2 नवंबर, तो 2 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा एफओएमसी मीटिंग का और हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक कितना हो रहा है। बट आप देखोगे अक्टूबर में कोई ऐसा इवेंट नहीं है एफओएमसी का जिसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी आए या फिर मार्केट में बियरिशनेस आए। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, एंड जो लास्ट एफओएमसी मीटिंग होगी दैट इज ऑब्वियसली इन डिसंबर ऑन 14th of December. Now, this is one of the things which is positive. So now let's see how Bitcoin is going to perform next month in October, in midterm and in long term. So history comes very, very handy, and I always use history to help me out, and this is one of the tweets that we shared. So you can see that September is a month which is mostly bearish, and this time around it is at break even. तो जिस टाइम पे हम थे September start में वहीं आके ऑलमोस्ट हम खड़े हो गए हैं। But if you talk about October is one of the most bullish months for Bitcoin in the history. So you can see हमें बहुत अच्छे returns मिले हैं when it comes to Bitcoin in October. So this time around the same scenario can play out really well, but we need to take confirmations from the technicals because कोई FOMC मीटिंग नहीं है या कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर मैं नहीं देख रहा हूँ जो मार्केट को एकदम से डंप कर दे यहाँ पे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड। हमें पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो सकता है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। सो देर इज़ नो एक्सटर्नल फैक्टर एज सच, बट अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली विल टेक केयर ऑफ इट, बट टेक्निकल इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एंट्रीज। सो आई विल शो यू वन ऑफ द चार्ट्स, and this is what's happening with Bitcoin on a daily time frame. So it made a high, then it made a low, it made a lower high, it made a lower low, it again made a lower high, और अब हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास पहुंच चुके हैं। And you can see there are two major supply zones. One is somewhere around say $30,000 and the other one is somewhere around say $19,000-$20,000 जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। So according to me, first of all we'll have to breach this level. So we are somewhere around going to breach the previous low जो अभी क्रिएट हुआ था in say mid June, और हम 17,700 के नीचे आएंगे एक बार, एंड देन वी कैन पोटेंशियली गो बैक टू आवर सप्लाई जोन्स। तो वहाँ पे $19,000-$20,000 के बाद अगर एक बार टैप करके मार्केट नीचे आती है, इफ वी गेट द कन्फर्मेशन, सो दैट विल बी द फर्स्ट एंट्री। एंड इफ देयर इज समथिंग बुलिश इन द मार्केट, कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है और इफ द अदर सिनेरियो इज वर्किंग आउट, अगर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलती है अपने फर्स्ट सिनेरियो में, देन द मार्केट कैन आइडियली रैली एंड इट कैन गो टू से $30,000। तो ये दो मेजर सप्लाई एरियाज हमें दिख रहे हैं इस वक्त बिटकॉइन के अंदर। सो दिस इज द आइडियल केस, एंड यू कैन जॉइन आवर डिस्कॉर्ड इफ यू वांट टू डिस्कस हाउ टू टेक एंट्रीज और क्या ये सही टाइम है एंट्री लेने का। और जब हम एंटर करते हैं वी ऑलवेज टेल आवर कम्युनिटी फॉर द सेम, सो यू कैन जस्ट मेक दैट वन थिंग, यू कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। सो दिस इज अबाउट बिटकॉइन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट Nifty 50, Nifty has been fairly sideways, it's moving in a parallel channel, and if we see from mid-August till September and it's moving between these two trend lines, and this is something which I expect that in coming few months it should be in this range itself, because why not? But still, in case if we see a breakdown, it can dump down heavily, and in case of a breakout we can see market going to say 20,000, because that is fairly possible if we see a breakout. So nothing should be done at this moment, just wait for the confirmation and that's all. But still the Nifty is giving you so many opportunities daily to trade, like take the intraday trades, and one such trade we shared on Discord which gave us massive profits, and I'm sharing the same on the screen. So according to me, just make sure that you have your stop losses when you're making a fresh position, because the market is in sideways trend, and any possible scenario like a World War III kind of a scenario where we see Russia-Ukraine tension and a nuclear war, or if we see bad results from FOMC meetings, the market can be very very bearish and we can see a good dump in the market, which can be expected. So just make sure that you be very very careful while you're making long term entries, and if you play your intraday trades, just make sure that you have your stop losses in place and try to be very very defensive while you're trading at this point in time. So that's it from my side, guys, and just in case you love what we're doing, just make sure you give a thumbs up on this video and subscribe to the channel, because we will bring such content every single day. So thank you so much guys for joining me in this video. See you in the next video. Take care. Bye bye.